right, welcome everyone. Good afternoon. Welcome to our usual fundamental physics series in which we are dealing with the natural phenomena that occur around us and how humans have um, manipulated it for their own interest. Physics is a part which deals with all of this. So we have traversed our electricity and magnetism journey, and now we are on the ship that is called light. So let us quickly see where we were on our timeline. And according to this timeline, we are still on the class 7 series. We completed half of the class 7th light chapter in the previous class, and now we'll be covering up whatever is left. So before starting with the new thing, let's just quickly recap what we learned in the previous class or in the previous two classes. So we now have a firm opinion that light travels in a straight line, and we are now quite acquainted with some of the usual terminologies that we will encounter while studying light, like object and image. So now we know that object is something that is kept in front of the mirror or in front of a reflecting surface, and our interest lies in reflecting surfaces, which are mirrors and lenses basically. So object is front of the mirror, and image is formed either inside or inside the plane, inside the unreal plane, and or reflected back towards the physical plane, if the image which can be taken on a screen. And related to that, we come to this point that images formed on a screen are real images, and images formed behind the mirror are known as virtual images. तो ये चीज हमने उस वीडियो में देखी थी लास्ट क्लास में, जब हमने पढ़ी कि लास्ट क्लास में हमने जो देखा था कि जो प्लेन ऑफ मिरर है वो ये वाला होता है, ये मिरर है, हमने बनाना सीखा था कि ऐसे डैशेस बना देंगे तो वो ओपेक सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ये जो साइड होगी यहाँ से इंटरेक्ट करेगी लाइट मिरर के साथ। तो ये वाला जो प्लेन है पूरा, दिस होल प्लेन विल बी दी इमेजिनरी या वर्चुअल प्लेन, और ये होता है हमारा रियल प्लेन। तो द इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड समवेयर हियर, जैसे अगर ये प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, कैंडल रख के देख रहे थे अभी तक, तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो दिस इज अ वर्चुअल इमेज क्योंकि ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द मिरर दिख रही है। लेकिन इफ वी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ मिरर, जैसे इनमें से कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स वो होते हैं जो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर दोज in which the reflecting surface is curved on the outside, ऐसे। तो कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके कुछ नीचे कहीं पे ऐसे इमेज बना देती है, एक एक ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं ये कैंडल है, तो उसकी एक इमेज यहाँ बन जाती है। So this was an example of the real image. फिर एक चीज हमने यहाँ देखी, इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स आर इन्वर्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये वाले इस इमेज को आप लोग देखिए, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ the word ambulance is written in an inverted format on the bonnet of ambulances. Why? Because when a driver who is riding ahead of the ambulance, and if he or she or they see the image of the ambulance in their rear view mirror, अगर उन्हें अपने rear view mirror में ambulance दिखती है तो उन्हें सीधा सीधा दिख जाता है ambulance लिखा हुआ, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा कि पीछे वाली गाड़ी पे क्या लिखा है, जरा भी ध्यान नहीं देना है, they will instinctively know and immediately know that this is an emergency service vehicle and we need to give them a pass. तो hence इस natural phenomena का जो plane mirrors
या रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, इवन कॉन्केव मिरर्स भी करते हैं, तो वो लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं। एंड उसी को हम लोग यूज करके अपनी इस एक इमरजेंसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, एम्बुलेंसेस के साइन को इन्वर्ट करके। So this was all that we studied about in the previous class, and now we are going to encounter a new type of reflecting surface which is called lens. लेंस और मिरर्स काफी सिमिलर हैं, लेकिन लेंस पूरी उस लाइट को रिफ्लेक्ट ना करके, लेंस does not completely reflect all the light, but on the other hand it allows light to pass through it. वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देगा, ऐसे कुछ करके, ऐसे लाइट को पास होने देते हैं अपने से। एंड उसी का अगर हम एक लाइट के इंटरेक्टिव फिगर देखें तो यहाँ पे है, इफ लाइट सोर्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो एक लेंस, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस एंड ये है एक कॉनकेव लेंस। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो मिरर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पढ़ा था, वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। एंड इसमें हमें थोड़ा ये बाहर की तरफ कर्व दिख रही है, ये लेंस, ये वाली, ये लेंस थोड़ी बाहर की तरफ कर्व दिख रही है। बट अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इसको बीच में से ऐसे आप हल्का सा डाइसेक्ट कर दीजिए, so this part still looks like it's curved on the inside, and उसका राइट हैंड साइड काउंटर पार्ट भी आपको इनसाइड ही कर्व्ड हुआ दिख रहा है। लेकिन बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इट, दे आर लेटिंग इट पास थ्रू देम, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। बट अगर उसे हम डाइसेक्ट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली मिरर्स जैसे ही दिखेंगे। तो ऐसे हम फिगर से देख के एक ऑब्जर्वेशन ले पा रहे हैं कि ये लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये कहीं ना कहीं लाइट को कन्वर्ज कर रही है अपनी तरफ। एंड यहाँ पे जो कॉन्केव लेंस है, लग रहा है कि लाइट को डाइवर्ज कर रही है बाहर की तरफ। मिरर्स में क्या था, जो कॉन्केव मिरर था वो लाइट को कन्वर्ज करा रहा था, ऐसे छोटा कर दे रहा था इमेज को एंड एक रियल इमेज बना रहा था। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर था, उसको हमें लग रहा था कि वो डिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को थोड़ा दूर दूर। सो अभी ये सारी जो इंट्रिकेसीज है कि या यूं कहें टेक्निकलिटीज हैं लेंसेज की, मिरर्स की, एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैसी इमेजेस बनती हैं, कैसी शेप्स होती हैं, क्या उनमें चेंजेस आते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 वाली सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। एंड उसमें कुछ ऐसी छोटी एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें हम कुछ कुछ कंडीशंस देखेंगे। एक क्वेश्चंस लाइव क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे करने का, जिसमें हम गेस करना सीखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे बस थोड़ा देख के लग रहा है कि ये कुछ कन्वर्ज कर रहा है एंड ये कुछ डाइवर्ज कर रहा है, ऐसे, एंड बस वाइस वर्सा समझ के रखना है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी कुछ देखा था कि जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक तरीके से ट्रू है, वो मैग्नेटिज्म के लिए एक तरीके से ट्रू है, एंड वो एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, कहीं वो हैंड इन हैंड चल रही है, कहीं वाइस वर्सा चल रही है। सो अगेन, यूनिवर्स की जो हमने एक सबसे एब्सोल्यूट ट्रूथ वाली बात जो सीखी है, वो यही है कि द यूनिवर्स ऑलवेज स्ट्राइक्स अ परफेक्ट बैलेंस। हर चीज बैलेंस में रहती है यूनिवर्स में। कहीं अगर कुछ एक्सप्लोसिव होता है तो कहीं पे वॉइड भी होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है किसी चीज का, तो कहीं पे बहुत ज्यादा खालीपन होता है। कहीं पे बहुत गर्मी होती है, बहुत, जैसे स्टार्स में, नेबुलास में बहुत बहुत कंडेंस्ड हीट होती है, तो कहीं पे एकदम ही वास्ट स्पेस है जहाँ पे कोई हीट, लाइट, एनर्जी कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। वहां पे -273 केल्विन तक जाता है, मतलब 0 केल्विन तक चला जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो तक। तो देयर इज ऑलवेज अ गुड बैलेंस इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल रहा है हमें।
अब जो हमारी एनसीईआरटी में इमेजेस दी गई हैं उनको थोड़ा स्टडी करते हैं कि कैसे ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं इमेजेस का लेंसेज के थ्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देखते हैं, इन दोनों इमेजेस में फिगर 15.25 में जो ए और बी इमेजेस हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये वाली जो भी हम लोग देख रहे हैं, एंड ये लग रहा है देख के इसको कि लाइट को ये कन्वर्ज ही करता है। ऐसे अभी हम लोगों ने देखा कि लाइट को ये ऐसे कन्वर्ज कर रहा था। तो यहाँ पे इस इमेज में देख के ये तो साफ होगा कि यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे जा रही है इसके अंदर, और यहाँ पे ये ऐसे कन्वर्ज कर जा रही है, इसलिए एग्जैक्ट ये देखिए आप इमेज एक रियल इमेज यहाँ बन जा रही है। रियल इमेज कैसे किसे कहते हैं? इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। तो ये स्क्रीन पे ले पा रहे हैं हम बिकॉज लाइट इज बीइंग पास थ्रू इट, तो वहां बननी चाहिए इमेज एंड वहां बन भी रही है। दिस इज अ रियल इमेज। बट अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, फिर मैं वही कहूंगा कि इस टेक्निकलिटी को ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बट कुछ इस डायग्राम को अगर देखें, यहाँ पे ऐसे कन्वर्जेंस हमें दिख रहा है लाइट का। तो कुछ आगे चल के देखेंगे फोकस, फोकल पॉइंट ऐसा भी कुछ बोलते हैं, जो जो इमेज क्लियर बनती है कहीं पे, तो वो जनरली फोकस वाली जगहों पे बनती है। क्लैरिटी जैसे डे टू डे लैंग्वेज में भी हम देखते हैं कि फोकस होना बहुत जरूरी है टू हैव क्लैरिटी इन थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो इमेज की क्लैरिटी के लिए भी फोकस का जो डिस्टेंस होता है वहां बनना जरूरी है इमेज। तो ये एक इन्फरेंस है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज चेंज्ड, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन इज चेंज, तो उससे इमेजेस के एक्स और वाई मान लेते हैं, तो उससे इमेज के बनने में कुछ चेंजेस आते हैं। images might get enlarged, they might get inverted, they might get diminished, बहुत कुछ हो सकता है। ये थी रियल इमेजेस फर्स्ट टू इमेज इन दो पिक्चर्स में वी वर सीइंग द रियल इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब वर्चुअल इमेजेस देख रहे हैं यहाँ नीचे। तो वर्चुअल इमेज क्या है? जो हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देखें, उस किसी स्क्रीन में नहीं बन रहा है, एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ दैट। अब कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होता है, या मतलब 100% एफिशिएंसी वाला कोई मशीन नहीं बन सकती है, कोई भी चीज नहीं कह सकते हम जो हम देखते हो। तो लेंसेज भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, मेजॉरिटी लाइट को पास होने दे रही हैं, लेकिन कुछ लाइट उनसे भी रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो रिफ्लेक्ट बैक होके अगर अ, जैसे यहाँ पे इस प्लेन में बन गया कुछ इमेज, या यहाँ इस प्लेन में बन गई कुछ इमेज, तो वो वर्चुअल इमेज कहला जाएगी हमारे इस कंडीशन में। अब मिरर्स के केसेस में वर्चुअल इमेज हम उसे कहते थे जो इस प्लेन में इनसाइड द मिरर बनती है। इनसाइड द मिरर जो भी इमेजेस फॉर्म होती हैं उनको हम वर्चुअल इमेज कह देते थे, यहाँ पे जो बन रही है इमेजेस यहाँ पे बन रही है। लेकिन अब लेंसेज के केस में तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस गायब ही हो गया, अब तो दोनों चीजें बराबर है, लाइट पास हो रही है पूरी। अब वर्चुअल प्लेन और रियल प्लेन क्या होगा? तो वील जस्ट स्टिक बाय द डेफिनेशन कि वर्चुअल इमेज जो हम स्क्रीन पे ना ले पाए, एंड रियल इमेज जो हम स्क्रीन पे ले पाए। अब लेंस के केस में हम स्क्रीन पे वही इमेज ले पाएंगे जो इसके ऑपोजिट साइड रखी होगी यहाँ पे, और यहाँ से लाइट आ रही हो, यहाँ पे इमेज बन जाएगी कुछ। लेकिन अगर कोई इमेज लेंस के इस साइड ही बन जाए, यहाँ पे बन जाए कुछ इमेज, तो उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन लगाएंगे तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी एंड फिर वो इमेज बननी रहेगी। इसलिए ये वर्चुअल इमेजेस जो है ये वाली ऐसे बन रही हैं। फिर एक रियल लाइफ एक्टिविटी को हम देखते हैं, रियल लाइफ फिनोमेना को देखते हैं, जो शायद आपने अपने प्राइमरी स्कूलिंग के डेज में कभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा, या अभी भी कभी किया हो बड़े होने के बाद भी। मैं तो करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता था। कहीं जैसे आग लगानी होती है किसी जगह पे, तो मैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको लेके बैठ जाता था, और बड़ा मजा आता था, जैसे आग लग जाए या फिर कागज में छेद हो जाए। तो इट यूज टू बी अ फन टास्क।
एंड वो यही क्या कहते हैं रियल इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी, उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होती है, बड़ा सा जो जो चीज उसे मैग्नीफाई कर रहा है। तो वो एक रियल लाइफ यूज केस है, एंड यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानना शुरू करेंगे इमेजेस की। तो कि कैसे इमेज बड़ी छोटी क्यों होती है, किस किस टाइप की लेंस से इमेज बड़ी छोटी होती है, किस टाइप के मिरर से इमेज बड़ी छोटी होती है, वो सब देखेंगे। बट दिस इज अ कूल थिंग कि यू कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सन। आपने सन की रियल इमेज फॉर्म कर दी, उसकी लाइट रेस को कन्वर्ज करके किसी प्लेस में, तो आप सन की थोड़ी सी पावर बोरो कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली बोरोइंग द पावर ऑफ द सन। जो उस सरफेस एरिया में जितने पे लेंस, इस लेंस पे जितनी लाइट पड़ रही है, इफ यू बोरो दैट एनर्जी एंड उसको आप कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं एक जगह पे, तो यू आर एक्चुअली सीइंग द इफेक्ट ऑफ द रियल सन एट दिस पॉइंट। तो छोटे से पॉइंट पे बस 5 से 10 सेकंड अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर दी लाइट रेस को, तो वहां टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है कि आग लग जाती है। तो बस इतने से जगह की जो सन रेज हैं, दे आर सो पावरफुल दैट दे कैन इग्नाइट अ सरफेस। तो सोच के देखिए, जो इतने इतने वास्ट सरफेस एरिया पे हमारे पूरी अर्थ पे इतनी सारी जो सनलाइट पड़ती है रोज, इफ वी आर एबल टू हार्नेस इट, इफ वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट इट समहाउ एंड you know reverse the destructive power of the sun and use it to uh, you know diminish our energy crisis and energy needs, तो बहुत बढ़िया होगा। रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, सन को और एफिशिएंटली हार्नेस करना हम सीख रहे हैं। अभी जो सोलर सेल है, बिजली बनाते हैं जो हम सोलर एनर्जी से, these cells are very less efficient। एक commercially available cell जो है, it's only 24 to 25% efficient। तो if we find a way जिससे हम लेंसेज को और सोलर सेल्स को एक अपैरेटस बना के, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के यूज कर पाए कि थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाए सोलर सेल्स की एनर्जी बनाने की, तो मजा ही आ जाएगा। रिसर्च इज बीइंग डन, इस पे भी कुछ काम हो रहा है, एंड होपफुली वी विल सी सम गुड रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर। देन अब हम आते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है हमारी बुक में, विच इज द एक्टिविटी नंबर 15.6, एंड इट इज more of a question than an activity कि whether the sunlight is white or colored। अब हमें जो लाइट आते हुए दिखती है वो तो हल्की येलोइश वाइट ही दिखती है जिसको हम लोग थोड़े और आर्टिकुलेट टर्म्स में वार्म वाइट कहते हैं। तो सनलाइट इज वार्म वाइट, अ शेड ऑफ वाइट कह सकते हैं आप उसको। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इट इज नॉट वाइट एंड इट इज मेड अप ऑफ कलर्स? Kindly respond in the chat box. What do you guys think? Whether it is white or is it colored? Hello? Hello? Okay, it is colored. Okay. So, हाँ, ये आंसर सही है, आंसर सही है। Let us back it by science. Let us learn why is it colored. तो हमारे भाई बहुत सारी खोजों के लिए जो आदमी जिम्मेदार हैं, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था, एंड इसको क्रेडिट भी दिया जाता है उन्हीं को, इसलिए इसको न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। एक अगर सर्कुलर डिस्क पे हम 7 इक्वल सेगमेंट्स बना दें, एंड उनपे जो रेनबो के कलर्स हैं, या ये जो कलर्स होते हैं, याद किया था हम लोगों ने ऐसे पहले, विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो कलर्स हैं, इनकी अगर एक डिस्क बने एंड देन इसको बहुत तेजी से रोटेट किया जाए, घुमा दिया जाए चक्री की तरह, तो एक बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट हमें देखने मिलता है कि इट टर्न्स टू वाइट। मतलब अपेरेंटली वो हमें सारे कलर्स एक साथ घूमते हुए वाइट दिखने लगते हैं, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी।
कि जो भी विजिबल, अब इसको हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लिया है, नाउ वी कॉल इट द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट को, लाइट अपने में कुछ नहीं, हर चीज जैसे यूनिवर्स में, अब ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है सारे साइंटिस्ट सबके बीच में कि एवरीथिंग और द होल ऑफ एग्जिस्टेंस, मैटर एंड द फंडामेंटल पार्टिकल, सब कुछ ही वेव्स के फॉर्म में भी, वेव के फॉर्म में ही क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बट इट्स सर्टेन, इन सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव एंड एक्ट लाइक पार्टिकल्स। तो लाइट जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एंड उस रेडिएशन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, मतलब अब ढेर सारी वेवलेंथ्स लिख दे तो एक हो जाएगा इंफ्रारेड और एक हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। ये दो ऐसे स्टॉपर्स मान लेते हैं पूरी वेवलेंथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, बहुत सारी चीजें आती हैं, माइक्रोवेव, और बहुत पीछे भी चले जाए तो ये सब आती है। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो रेड से शुरू होता है, जैसे विबग्योर में ये देखा था हमने। अ, ये विबग्योर है, तो रेड से शुरू होता है और वायलेट पे खत्म होता है। यही इस बीच की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें दिखती है विजिबल लाइट के फॉर्म में। इसके आगे का अल्ट्रा वायलेट हमें नहीं दिखेगा, या इतना जोर, इतना ज्यादा ब्राइट होगा वो कि हमारी आंखों की रोशनी को वो खराब कर सकता है, या फिर द एबिलिटी टू सी विल बी हिंडर्ड, या इट कैन ऑल्सो बी परमानेंटली डैमेज्ड। इसीलिए सन को डायरेक्टली आंखों से देखने के लिए मना किया जाता है। वी शुड ऑलवेज यूज एन एक्सरे वाला फिल्म यूज करने को कहते हैं, या फिर पिनहोल कैमरा से जैसे देखा था हमने, तो वो सब चीजें करने से डिमिनिश हो जाती हैं, ये सारी वेवलेंथ कट ऑफ हो जाती है। बट अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड हम देख नहीं सकते। वी कैन ओनली सी द विजिबल लाइट विच लाइज इन दिस स्पेक्ट्रम। एंड इसी के छोटे और अगर इनको तोड़ दिया जाता है डिस्टिंक्शन में, तो ये कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ निकल के आती हैं विबग्योर वाली। So the scientist Sir Isaac Newton, he discovered that the visible light can also be broken down into several colors, and ये colors ही rise देते हैं रेनबो के कलर्स को, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे सब materials which can you know disperse this white light, which have the tendency to reflect light in certain ways कि वो उसके सारे wavelengths अलग हो जाएं, तो वो या तो व्हाइट लाइट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, या फिर इन कलर्स को इस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रिज्म का। प्रिज्म्स आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। वो ऐसे, उनके अंदर एक फिनोमिनन होता है जो हमारे स्कोप के बाहर है, बट 11th 12th में हमें पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं। उसकी वजह से ये सारा कुछ डिस्पर्स हो जाता है। ये जो रेनबो का कलर है, ये पूरा का पूरा एक प्रिज्म जो है डिस्पर्स कर पाता है व्हाइट लाइट से। तो this is correct, you guys had the right answer in your mind. White is not, the color of light is not white, but uh, it has hidden 7 colors, 7 major colors. एंड उनको हम क्योंकि लाइट इतने ज्यादा वाइब्रेट करके आती है, सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा डिफरेंट वेवलेंथ्स की वो रेडिएशन फेंक रहा है हमारी तरफ, कि हम उसको, हमारी ह्यूमन आईज जो है उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, उसको वो एक साथ वाइट की तरह देखती है। तो यस, यूनिवर्स इज ग्रेट। And by this, we have covered our class 7th lecture. It is finished. We have covered all the parts. And quickly, let's go through a summary of what we have learned. A convex lens. अब ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये मैंने देखा कि बुक में इतना ढंग से नहीं दी थी, बट इन्होंने समरी में जरूर ऐड कर दी थी। तो विल जस्ट गिव इट अ रीड, लेकिन इसको हम याद करने के पर्सपेक्टिव से, या फिर टेक्निकलिटी के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे।
बस। लेकिन ये याद कर रहे थे हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा, कॉनकेव लेंस के बारे में देखा, कैसी इमेजेस वो फॉर्म करती हैं, इसकी उतनी इंफॉर्मेशन क्लास 7 की बुक में नहीं थी। बट in the next class we will actually go through several videos जिसमें हम लोग exactly देख पाएंगे कि कैसे lenses बन रही और कैसे images बनती हैं different types of lenses and mirrors से, and उन images की क्या properties होती हैं। जैसे for a start we will say कि वो उस image का orientation कैसा है। जैसे इसमें ये दो terms आपने देखे, inverted या erect। तो कोई इमेज, जैसे उसके हम ए और बी पॉइंट्स मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन एन, जिसको हम इरेक्ट का एडजेक्टिव देंगे तो वो इमेज सीधी रहेगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम कह देंगे इरेक्ट इमेज। और इफ वी सी एन इमेज विच हैज गॉन थ्रू एन इन्वर्जन, वो उलट चुकी है, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। और इसके पीछे की ज्योमेट्री क्या है वो भी हम देखेंगे, या क्या एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई द इमेजेस गेट इरेक्टेड, व्हाई इमेजेस आर स्टिल इंटैक्ट एंड इरेक्ट और दे गेट इन्वर्टेड। तो ये एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई वर्चुअल और रियल। ये तो हम जान चुके हैं वर्चुअल एंड रियल इमेजेस किसे कहते हैं। मिरर के केस में जो इमेजेस इस प्लेन में बनती हैं दे आर कॉल्ड रियल, एंड इस प्लेन में जो बनती हैं दे आर कॉल्ड वर्चुअल। और लेंसेज के केस में वी गो बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, की ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, दे आर रियल इमेजेस, एंड द इमेजेस व्हिच वी कैन नॉट रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। ये हो गया। एंड देन एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की मैग्निफाइड या फिर स्मॉलर। तो स्मॉलर को एक और टर्म कहते हैं डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड इमेजेस या फिर मैग्निफाइड इमेजेस, तो यही तीन चीजें याद रखनी होंगी हमें, जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू जज एन इमेज based on these three characteristics, and then we'll easily understand the working of different lenses and different reflecting media. And then the last observation or the last understanding that we have about light is that white light is composed of 7 colors. And ये जो information थी इससे थोड़ा हम लोग और डीपर डाइव किया हमने, और हमने पूरा स्पेक्ट्रम भी देखा लाइट का कि विबग्योर से शुरू होता है, मतलब विबग्योर उसे हमने याद कर लिया है, but actually it starts from infrared and goes to ultraviolet on the scale of wavelength. और ऐसे ही जाते जाते यहाँ माइक्रोवेव होती है सबसे फार एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में, और इधर वाले फार एंड में होती है गामा रेज। यहीं कहीं एक्स रेज भी आती हैं, सबके कुछ कुछ सर्टन वेवलेंथ होते हैं। तो ये जो एरिया है यही हमारी आंखें, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आईज दैट आर द विजुअल सेंसरी इनपुट इन आवर ह्यूमन बॉडी, ये इसी स्पेक्ट्रम की लाइट को देख पाते हैं, या इसी स्पेक्ट्रम के रेडिएशन को परसीव कर पाती हैं एज लाइट। एंड व्हाइट लाइट इज कंस्टिट्यूटेड बाय these 7 मेजर कलर्स, और भी छोटे कलर्स होते हैं, पूरा जो कलर का स्पेक्ट्रम है वो इसी में आता है। अब अगर आप इसको और छोटा करते जाए, इनमें ऐसे 10 विभाजन कर दें, तो यू विल गेट टू सी डिफरेंट शेड्स ऑफ वायलेट, एंड इंडिगो और वायलेट के बीच में बहुत शेड्स हैं। तो जो पेंटर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल पीपल हु वर्क विथ फोटोग्राफी in the field of photography, या फिर who work on different sorts of colors and everything, वो लोग 256 कलर्स का पैलेट बोलते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। इसको स्टैंडर्ड माना गया है इंडस्ट्री में,
तो 256 कलर्स को स्टैंडर्ड कलर्स मानते हैं. इनसे भी और छोटा, अगर आप एक एक मिलीमीटर की वेवलेंथ बढ़ाते घटाते जाए तो मतलब you can actually get infinite number of colors. But the 7 colors that are visually distinct and anyone can distinguish between them are these 7 major colors with pure, and इन्हीं से हमारी white light बनी है. So with that we conclude our today's lecture, and I hope it was interesting. I hope you guys learned some, or at least one new concept. And this is how our lectures are always structured, that we get to learn more about our day-to-day phenomena, and we get to back our uh, you know thought process with science. So with that, yes, we finish our today's lecture. Thank you so much.